Hi guys, how are you? Myself Anurag Kushwaha from Rani Revati Devi Saraswati Vidya Niketan Inter College Rajapur Prayagraj welcomes you YouTube channel Vidya Bharati Kashi Prant. Today we will discuss about a model paper of social science. This model paper is divided into two parts. Part 1, Part A and Part B. In Part A, in Part A is history and political science. It means civics. And second part, it means in Part B is geography and economics. Some instructions for you. First is first 15 minutes are allotted for the candidates to read the questions paper. Second, this question paper is divided into two parts, A and B, जो भी हमने आपको बताया. Third, marks allotted for each questions are mentioned against them. लास्ट में क्वेश्चन आपका थर्ड होता है मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस. अटैच फॉर्मली द सप्लाइड मैप्स फॉर पार्ट्स ए एंड बी टू योर आंसर शीट. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज first question is part A. In part 1, first question is multiple choice questions. First question is, when was the Treaty of Constantinople signed? The right answer is 1832. 1832 is right answer for first question. Treaty of Constantinople signed between France and Allies power after Battle of Waterloo. Second question is, who wrote the famous book Hind Swaraj in 1909? The right answer is Mahatma Gandhi. Second question का आपका right answer is Mahatma Gandhi. In this book, Mahatma Gandhi tell us reason about non-corporation movement. ठीक है, इस बुक में महात्मा गांधी ने हमें नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के रीजन के बारे में बताया था. ठीक, ये हो जाता है. थर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज चटनी म्यूजिक बिकम पॉपुलर इन. तो देखिए, चटनी म्यूजिक बिकम पॉपुलर इन त्रिनिदाद. ठीक है, त्रिनिदाद आपका जो है ये आपका एक इट इज अ कंट्री इन Caribbean island. ठीक, next fourth question is MCQ. Is due to which incident Gandhi ji postponed non-corporation movement? The right answer is due to Chauri Chaura incident. Due to Chauri Chaura incident. Due to Chauri Chaura incident, गांधी जी postponed non-corporation movement. ठीक है, और इसकी डेट है आपकी 5 फरवरी चौरी चौरा इंसिडेंट की 1922. ठीक है, और गांधी जी ने आपका 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा मूवमेंट चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से आपका नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को पोस्टपोन किया था. ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन इज विच इज द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ पंचायती राज इन द रूरल एरियाज. तो हाईएस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ पंचायती राज इन द रूरल एरियाज इज जिला परिषद. जिला परिषद is the highest institutions of panchayati raj in the rural areas. Next and last question is in the MCQs. In India states are in India seats are reserved for women in. So seats are reserved for women in panchayati raj bodies. 1/3. It means
33% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन पंचायती राज बॉडीज। ठीक है, ये हो जाता है आपका। तो दीज आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। Question number 7. Who organized the Dalits into depressed class association in 1930? Right answer is Dr. B.R. Ambedkar. या आप कहोगे Dr. B.R. Ambedkar was founder of depressed class association in 1930. This association is belongs to SC community. It means scheduled caste. ये मेनली आपका जो है शेड्यूल कास्ट से ये बिलोंग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। हु होस्टेड द कांग्रेस एट वियना इन 1815? इट वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक वाज चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया। चांसलर मींस प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चांसलर मीन्स होगा आपका यहां पर प्राइम मिनिस्टर। इट मीन्स हु होस्टेड द कांग्रेस एट वियना इन 1815? आंसर इज इट वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कंसीडर्ड पॉपुलर? गिव 2 रीजंस। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कंसीडर्ड पॉपुलर बिकॉज democratic government is accountable government. Accountable government means answerable government, answerable type of government, because democratic government में अपने हर वर्ग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं या अकाउंटेबल होती हैं। यदि गवर्नमेंट ने कोई भी रॉन्ग डिसीजन लिया, ठीक है, तो उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी गवर्नमेंट की होगी। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, democratic government accommodates social diversities. Accommodate social diversities means solve the discrimination between different social groups like minority, majority, different linguistic groups। जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग में पढ़ा है, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में जैसा कि आपने देखा था डच स्पीकिंग पर्सन एंड फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन। ठीक है, तो डच स्पीकिंग पर्सन एंड फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन में जो भी आपका ये सोशल डाइवर्सिटीज या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, उन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स का सॉल्यूशन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सीज इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है बाय द प्रोसेस ऑफ पावर शेयरिंग। बाय द प्रोसेस ऑफ पावर शेयरिंग। अब बात आती है व्हाट इज पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ distribution of powers and responsibilities between different level of government and different organs of government. Level of government means central government, state government and local government. ठीक है, there are 3 levels of government: central government, state government and local government. And organs of government में यदि हम बात करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। फर्स्ट ऑर्गन इज लेजिस्लेचर, सेकंड ऑर्गन इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड ऑर्गन इज जुडिशियरी। ठीक है, तो ये आपके हो जाता है, ये आपका हो गया वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन हैज 2 मार्क्स। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। फर्स्ट वी नो अबाउट व्हाट इज ग्रेट डिप्रेशन। तो ग्रेट डिप्रेशन मीन्स होता है डाउनफॉल इन अ इकोनॉमी इज कॉल्ड ग्रेट डिप्रेशन। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अमेरिका में वर्ल्ड का लार्जेस्ट शेयर मार्केट है आपका वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज,
और यहां से आपका जो है ग्रेट डिप्रेशन की कंडीशन क्रिएट हुई इन 1929। ठीक है, इन 1929 1929 से आपका ग्रेट डिप्रेशन की कंडीशन अमेरिकन शेयर मार्केट इट मींस वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज से क्रिएट हुई। और इसके देयर वर मेनी कॉजेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। फर्स्ट कॉज इज एक्सेस प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चरल फील्ड आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, फर्स्ट कॉज इज एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का एक्सेस प्रोडक्शन। ठीक है, और आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या होता है कि आपका लैक ऑफ डिमांड्स की कंडीशन क्रिएट होती है। ठीक है, लैक ऑफ डिमांड मींस होता है कि जो प्रोडक्शन आपका एक्सेस प्रोडक्शन हुआ उसके मार्केट में परचेज करने के लिए कोई भी नहीं था, उस प्रोडक्ट को मार्केट में परचेज करने के लिए कोई भी नहीं था। ठीक है, फर्स्ट रीजन हो जाता है एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इन एग्रीकल्चरल फील्ड। सेकंड रीजन लैक ऑफ डिमांड। सेकंड रीजन था आपका, सेकंड कॉज होगा आपका लैक ऑफ डिमांड। लैक ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि लोगों के पास जब परचेजिंग पावर होती कम होती है, इट मींस जब लैक ऑफ कैश की कंडीशन क्रिएट होगी। लैक ऑफ कैश मतलब कि जब लोगों के पास कैश नहीं होगा तो उस वक्त क्या हो जाता है, मार्केट में एक डिफरेंट टाइप की कंडीशन क्रिएट होती है जिसे हम कहते हैं लैक ऑफ डिमांड। लैक ऑफ डिमांड मतलब कि पब्लिक मार्केट में परचेजिंग कम कर देती है और प्रोडक्ट्स की डिमांड धीरे धीरे रिड्यूस होती है। तो ये सारी रीजन से जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रेट डिप्रेशन की कंडीशन क्रिएट होती है आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एक रीजन और था, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज को आपका लोन प्रोवाइड कर रहा था, बट आफ्टर 1923 के बाद धीरे धीरे अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करना बहुत ही कम कर दिया। इसकी वजह से भी यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी में बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ और ग्रेट डिप्रेशन इट मींस फाइनेंशियल क्राइसिस या इकोनॉमिक क्राइसिस की कंडीशन क्रिएट होती है इन द होल वर्ल्ड। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डिड नेशनलिज्म एंड आइडिया ऑफ नेशन स्टेट डेवलप। तो द आइडिया ऑफ अ नेशन इज द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एंड द नेशन स्टेट is developed by rise of due to the rise of middle class in Europe, due to the rise of middle class in due to the rise of middle class in Europe. Second, contribution of Napoleon Bonaparte. Third cause is development of nationalism and idea of a nation state is contribution of Napoleon Bonaparte. ठीक है, ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the difference between a federal form of government and a unitary one? Explain with example. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बात सबसे पहले हम देखेंगे what is federal form of government? Distribution of power. Distribution of power is main feature of federal form of government, and centralization is main feature of unitary form of गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपका जो है यहां पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपके इंडिया में है, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बेल्जियम। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा पावर शेयरिंग चैप्टर में, तो वहां पर बेल्जियम में भी आपका जो है ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर आपका होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। बट इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपका पावर का सेंट्रलाइजेशन होता है। इट मींस यहां पर पावर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। बट यूनिटरी फॉर्म फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये मेन, और इसकी एग्जांपल देखिए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
ठीक है, इसकी एग्जांपल में आप देखोगे इंग्लैंड, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इंग्लैंड। नेक्स्ट इंग्लैंड के बाद आता है आपका फ्रांस। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज जो है ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एग्जाम्पल हैं, जबकि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है आपका ये इंडिया, यूएसए, बेल्जियम, ये सारे कंट्रीज आपके फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एग्जाम्पल हैं। ठीक, तो ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल? फर्स्ट वी नो अबाउट व्हाट इज पावर शेयरिंग। ठीक है, फर्स्ट वी नो अबाउट व्हाट इज पावर शेयरिंग। तो अभी हमने बताया पावर शेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर्स बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। देयर आर two reasons are responsible for power sharing. First, power sharing is spirit of democracy. First reason is power sharing is spirit of democracy. Spirit of democracy is power sharing is spirit of democracy. And second reason is power sharing reduce the possibility of conflicts या controversies आप भी कह सकते हो between minority and majority. Power sharing reduce the possibility of conflicts between minority and majority. So power sharing is desirable. ठीक है, तो ये हो जाता है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। सेकेंड है, अब यहां पर आपको दोनों में से कोई एक करना रहेगा और आप ऐसे क्वेश्चंस का रिप्लाई करोगे जिसके बारे में आप ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, ये आपके लिए ऑप्शनल होंगे। इट मीन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और आपका जो है ये आपके ऑप्शनल होंगे जिसमें से आपको चॉइस होगी। ठीक है, चाहे आप 10th में फर्स्ट करिए या 10th का सेकंड, सेम ऐसे 11th में भी फर्स्ट करिए या फिर 11th में आप सेकंड करेंगे। लास्ट है आपका नेक्स्ट है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। हाँ, एक चीज और, आप जब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लिखेंगे तो इसके लिए मैक्सिमम वर्ड लिमिट होगी 100 वर्ड्स। इसके लिए आप जो है 100 वर्ड्स में इसका आंसर रिप्लाई करेंगे आप। एंड जब आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का रिप्लाई करोगे तब आपके लिए जो है वर्ड लिमिट होगी 200 वर्ड्स। यहां पर आप जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का रिप्लाई जो है 200 वर्ड्स में करेंगे। नेक्स्ट तो देखते हैं हम आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये भूल नहीं रहा है, क्या होगा भाई? Explain the role of languages in the developing the nationalist sentiments in Europe. ठीक है, हम इसके प्लेस पर ये क्वेश्चन देखते हैं, What were the causes of nationalism in India? What were the causes of nationalism in India? It means इंडिया में नेशनलिज्म के causes क्या थे, कौन कौन से ऐसे causes थे जिनसे कि इंडिया में नेशनल सेंटिमेंट्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। ठीक, तो देखते हैं इसके कॉजेस में सबसे पहले हम जानेंगे। फर्स्ट वी नो अबाउट व्हाट इज नेशनलिज्म। हम देखेंगे कि नेशनलिज्म क्या है। तो देखिए, नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड फॉर ओन कंट्री। नेशनलिज्म द फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड फॉर ओन कंट्री। अपने कंट्री के लिए जो फीलिंग्स है सिटीजन्स में डेवलप होती हैं, सेंटिमेंट्स जो डेवलप होते हैं लव एंड प्राइड के, उसी को हम नेशनलिज्म कहते हैं। तो देखिए, कॉजेज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया में सबसे पहला कॉज हम देखेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ या फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी। मिस्टर ए ह्यूम वाज द फाउंडर ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो फर्स्ट पॉइंट आप ये बताओगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस। सेकंड आप इसके लिए बताओगे डेवलपमेंट ऑफ मींस ऑफ development of means of transport and means of communication।
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट से भी यहां पर इंडिया में नेशनलिज्म का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस सम वे एंड मीजर ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है, यहां पर हमें देखना है जो है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया को देखना है। हम देखते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया। बट इसके प्लेस पर हम ये क्वेश्चन देखते हैं, मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड इन इंडिया। इट मींस ऐसे एरियाज को हम देखेंगे जहां पर वुमेन्स को डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, वो डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक, तो देखते हैं वे सारे एरियाज कौन से हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे आपका कौन से एरियाज में, सबसे पहला एरिया होगा यहां पर आपका जहां पर वुमेन्स को डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़ेंगे। सबसे पहला एरिया होगा आपका इन फैमिली। फैमिली में सबसे पहले वुमेन को डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, सेकेंड एरिया होगा आपका वर्किंग प्लेस। वर्किंग प्लेस पर भी बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर वुमेन डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम को फेस करती हैं। नेक्स्ट एरिया होगा आपका सैलरी। ठीक है, सैलरी में भी कभी कभी देखा जाता है कि मेल के कंपेयर में फीमेल को सैलरी कम प्रोवाइड की जाती है, मेनली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। ठीक है, जो आपकी इकोनॉमी का अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, यहां पर जो है मेल के कंपेयर में फीमेल को सैलरी कम प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद यदि हम एजुकेशन फील्ड में देखें तो एजुकेशन फील्ड में भी आपका लिटरेसी रेट फीमेल्स का मेल के कंपेयर में कम है, या वुमेन का लिटरेसी रेट मेन के कंपेयर में बहुत ही कम है। तो ये सारे एरियाज हैं जहां पर वुमेन को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। ठीक, तो ये सारे एरियाज के बारे में आप बताओगे। और पार्ट फर्स्ट का आपका लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट ए का आपका क्वेश्चंस रिलेटेड विथ मैप। क्वेश्चन नंबर 14, शो द फॉलोइंग प्लेसेस ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया सप्लाइड टू यू बाय द सिंबल एंड शो राइट देयर नेम। ये थोड़ा सा ये ऊपर चला जा रहा है, ये क्वेश्चंस ये सब हट जाएंगे। हाँ हाँ, बस हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेस वेयर जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन हैव 1 मार्क्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेस वेयर जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अमृतसर। ये आपका पंजाब में पड़ता है अमृतसर। पंजाब में अमृतसर है आपका, और यहां पर जो है आपका जलियांवाला, इट मींस यहां पर इस प्लेस पर, ठीक है, यहां पर जो है आपका अमृतसर पड़ता है। ऐसे एक लाइन खींचेंगे, यहां पर एरो बनाएंगे आप, ठीक है, और बाहर लिख देंगे आप अमृतसर। ठीक है, तो इस तरह से। सेकंड, द प्लेस वेयर गांधी जी मेड सॉल्ट। ठीक है, मतलब ऐसा प्लेस जहां पर गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया और इन्होंने नमक बनाया। ठीक है, तो ये प्लेस भी आपका पड़ता है गुजरात में, और गुजरात का फेमस प्लेस है दांडी। तो दांडी आपका गुजरात ये एरिया, और यहां पर आपका पड़ेगा, ये एरिया आपका पड़ेगा दांडी। यहां पर जो है इसको ऐसे यहां पर डॉट करके और इस प्लेस का नाम इसके नीचे यहां पर आप लिख दोगे। साथ ही साथ यहां पर ये क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं ये हाफ हाफ मार्क्स में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला क्या होता है कि प्लेस को आपको मैप में इंडिकेट करना होगा।
ठीक है, और उसके बाद प्लेस का नेम आपको अपने आंसर शीट पर भी लिखना होगा, क्वेश्चन नंबर 14 लिखकर, क्वेश्चन आंसर नंबर 14 लिखकर आप उस प्लेस पर भी जो है क्या करेंगे, उस आंसर शीट पर भी आप उस प्लेस के नाम को मेंशन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेस वेयर इंडिगो क्रॉपर्स स्टार्टेड देयर मूवमेंट्स। ठीक है, तो इंडिगो क्रॉपर्स अपने ने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया कहां पर, ये चंपारण, और चंपारण आपका पड़ता है बिहार एरिया में। ठीक है, तो यहां पर जो है इन्होंने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया। नेक्स्ट, द प्लेस वेयर कॉटन मिल वर्कर्स स्टार्टेड सत्याग्रह। ठीक, तो द प्लेस वेयर कॉटन मिल वर्कर्स स्टार्टेड सत्याग्रह, कॉटन मिल वर्कर्स ने अपना सत्याग्रह स्टार्ट कहां किया, तो ये प्लेस है आपका अहमदाबाद में। तो ये दांडी हो गया, और आपका यहां पर होगा प्लेस गुजरात में, ये आपका अहमदाबाद। यहां पर आप ये डॉट रखने के बाद आपको यहां पर उस प्लेस का नाम भी मेंशन करना है। नेम को मेंशन करने के साथ साथ आपको कॉपी पर अपने आंसर शीट पर भी उस प्लेस के नाम को आपको मेंशन करना होगा। ठीक, ये हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका मैप में, द प्लेस वेयर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1920 वाज हेल्ड। तो इसका आंसर होगा आपका कोलकाता। ठीक है, 1920 में कांग्रेस के 2 सेशंस हुए थे, दो। फर्स्ट आपका कोलकाता में हुआ सितंबर में, जहां पर क्या हुआ था, मिल ये इसलिए फेमस है कि यहां पर गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के प्रपोजल रखा था कांग्रेस वर्किंग कमेटी में। और सेकंड आपका हुआ दिसंबर 1920 इन नागपुर। तो नागपुर में सेकंड हुआ, बट आपका फर्स्ट हुआ था आपका, ये हुआ था आपका कोलकाता। कोलकाता इज इन वेस्ट बंगाल, कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। तो आप इसे यहां पर मेंशन करोगे। चलिए, यहां पर जो है ये आपका यहां पर जो है आपका ये हुआ था। तो ये हो जाता है आपका पार्ट फर्स्ट ऑफ सोशल साइंस मॉडल पेपर। ठीक है, और ये हो जाता है आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट फर्स्ट। देन उसके बाद फिर देखिए ये पार्ट बी। देखिए, नेक्स्ट है आपका पार्ट बी। पार्ट बी में आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो मेनली वो रिलेटेड होंगे आपके ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स से। इस पार्ट बी में आपका 20 मार्क्स का ज्योग्राफी होगा और 15 मार्क्स का आपका इकोनॉमिक्स। ठीक है, और साथ ही साथ पार्ट बी टोटल आपके 35 मार्क्स के होंगे। पार्ट बी आपका टोटल ये आपका 35 मार्क्स का होगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रवि क्रॉप। ठीक है, तो रवि क्रॉप में आपका राइट आंसर होगा ग्राम। ग्राम इट इज अ रवि क्रॉप। सेकंड क्वेश्चन, इन विच द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस्ड। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन इज सॉरी सॉरी, इसका राइट आंसर होगा आपका फोर्थ ऑप्शन इज उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ दीज स्टेट इज अ ब्लैक सॉइल मेनली फाउंड। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल मेनली आपके डेक्कन प्लेटू एरिया में हुआ है, उसके साथ साथ ही आपका कुछ और भी स्टेट है जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र में भी, ये सारे स्टेट्स भी आपके ब्लैक सॉइल के लिए फेमस हैं। बट यहां पर आपका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक, तो ये आपकी ब्लैक सॉइल जो है मेनली ये आपके महाराष्ट्र में है।
नेक्स्ट, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO वाज एस्टैब्लिश्ड इन, ठीक है, तो ये आपका जो है ये इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1960, ठीक है। मेनली इसका वर्क है जो इंडिया के फ्रंटियर एरियाज हैं, ठीक है, जिनकी वे सारे इंडिया के डिस्ट्रिक्ट जिनकी बाउंड्री अदर कंट्रीज से अटैच करती है, वहां पर रोड्स का कंस्ट्रक्शन BRO इट मींस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करता है। जैसा कि आपका चाइना से चाइना से टच करते हुए जो भी आपके इंडिया के बॉर्डर हैं, वहां पर मेनली जो है रोड्स का कंस्ट्रक्शन आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लो लिटरेसी रेट, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका बिहार, ठीक। तो बिहार का लिटरेसी रेट आपका इंडिया में सबसे कम है, और हाईएस्ट लिटरेसी रेट है आपका केरला में, और सबसे कम है आपका लोअर लिटरेसी रेट है आपका ये है आपका बिहार में। नेक्स्ट, इंडिया गवर्नमेंट रिमूव्ड ट्रेड बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन, राइट आंसर इज 1991, ठीक है। और आंसर लिखते समय आप ऑप्शन के नंबर्स के साथ साथ, जैसे कि आपने ऑप्शन नंबर 3 लिखा और इसके साथ साथ आप 1960 भी लिखोगे, तब आपका ये आंसर राइट माना जाएगा, ठीक है, तब जो है मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इस तरह आप लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, ठीक। तो ये हो जाता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ पार्ट बी। सेकंड देखते हैं आपका है फिर पार्ट बी में। टोटल 6 मार्क्स के हैं पार्ट बी का, ये आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेस, ठीक है, तो 2 आपको डिफरेंस लिखने हैं बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्स। तो नेक्स्ट है आपका फर्स्ट डिफरेंस है ऑल लिविंग थिंग्स इज बायोटिक रिसोर्स when all non-living things is a biotic resource. Second, it is originate from the biosphere, it means biotic resource is originate from biosphere, but abiotic resource originate from a lithosphere, hydrosphere and atmosphere. तो ये इसके बीच में 2 डिफरेंस हो जाते हैं, 2 डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट मींस GDP। तो देखिए, इट इज वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी या ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकंड इज सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड इज टर्शियरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तो मेनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में आपका प्रोडक्शन होता है गुड्स का, ठीक है, बट टर्शरी सेक्टर में क्या होता है आपका सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। तो वही कह रहा है इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, इट इज नोन एज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट इज another name of disguised unemployment. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हो जाते हैं आपके 3 क्वेश्चन होंगे, ये आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। देन उसके बाद फिर आते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखिए आपका है हाउ आर minerals in igneous and metamorphic rocks formed in igneous and metamorphic rocks, ठीक है, इसको रहने देते हम सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। नेम एनी वन फूड क्रॉप, राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ फेवरेबल जियोग्राफिकल कंडीशन फॉर इट्स कल्टीवेशन। इट मींस आपको एक फूड क्रॉप के नेम, तो मेनली आपका फूड क्रॉप इंडिया में 2 है, एक राइस है एंड सेकंड है आपका व्हीट। फिर कह रहा है राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ फेवरेबल जियोग्राफिकल कंडीशन फॉर इट्स कल्टीवेशन।
तो सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ व्हीट। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया में व्हीट होगा ऑन द बेसिस ऑफ पर हेक्टेयर। पर हेक्टेयर के बेस पर सबसे पहला आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट पंजाब, बट टोटल प्रोडक्शन के बेस पर हम देखेंगे आपका होगा यूपी। एंड इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो वर्ल्ड में इंडिया आपका सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट का। और भी उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर देखेंगे व्हीट के लिए हम बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल अमाउंट मोर देन 50 सेंटीमीटर। सॉयल एलुवियल सॉयल। तो ये सारा आपका क्या हो जाएगा, ये फेवरेबल जियोग्राफिकल कंडीशन हो जाएगा इसके कल्टीवेशन के लिए मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में हमें डिस्क्रिप्शंस बताने हैं। तो देखिए ये हो जा, तो इसमें क्या हो जाएगा, देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट सेक्टर इज प्राइमरी सेक्टर, इट इज आल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकंड सेक्टर इज सेकेंडरी सेक्टर, इट इज आल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। थर्ड सेक्टर इज टर्शियरी सेक्टर एंड इट इज आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट इज व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक, तो ये हो जाता है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लासिफाई द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन हाउ मेनी पार्ट्स कैन रोड ट्रांसपोर्ट बी डिवाइडेड। तो देखिए कह रहा है क्लासिफाई द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का आपका क्लासिफिकेशन करना है। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट 3 कैटेगरीज में है आपके, रोड ट्रांसपोर्ट, इट मीन्स लैंड ट्रांसपोर्ट, सेकेंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड थर्ड इज एयर ट्रांसपोर्ट। फिर कह रहा है इन हाउ मेनी पार्ट्स कैन रोड ट्रांसपोर्ट बी डिवाइडेड। इट मींस रोड ट्रांसपोर्ट को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो इसके बारे में भी। तो रोड ट्रांसपोर्ट का यदि हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो रोड आपको 6 कैटेगरीज में डिवाइड होती है, उनके बारे में यहां पर आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर इट मींस गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर इट मींस गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस एंड प्राइवेट सेक्टर मींस प्राइवेट इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो यहां पर आप बताओगे पब्लिक सेक्टर का मेन एम होता है, द मेन एम ऑफ पब्लिक सेक्टर इज सोशल वेलफेयर, बट मेन एम ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज टू अचीव, टू गेन मोर प्रॉफिट। तो यहां पर डिफरेंस। एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर इज फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम। ठीक है, ये इसके एग्जांपल हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे, तो प्राइवेट सेक्टर के एग्जांपल में आप आओगे बजाज, एयरटेल, रिलायंस, ये सारी कंपनीज आपके प्राइवेट सेक्टर के एग्जांपल में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लीगल मेजर्स शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एम्पावर कंज्यूमर इन इंडिया। तो मेनली यहां पर आप देखेंगे कौन कौन से लीगल, ठीक है, मेथड्स गवर्नमेंट ने अप्लाई किए हैं कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो देखिए यहां पर 3 टाइप के कोर्ट्स का कोर्ट, इट मींस जिसे वो कंज्यूमर फोरम कहते हैं, कंज्यूमर फोरम्स का यहां पर अरेंजमेंट है। सबसे पहला है आपका डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, सेकंड इज स्टेट कंज्यूमर फोरम एंड थर्ड इज नेशनल कंज्यूमर फोरम। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन का सजेस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन कौन से
मतलब स्टेप्स लिए। तो देखिए यहां पर जो है यदि स्टेप्स की बात करेंगे तो सबसे पहला हो जाता है आपका लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम। आप बताएंगे लैंड रिफॉर्म, सबसे पहला इसमें स्टेप था आपका लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम। ठीक है, जिसमें आपका एबॉलिशन ऑफ जमींदारी, कंसोलिडेशन, ये सारे प्रोसीजर्स आ जाते हैं, एंड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। फिर उसके बाद आपका आता है इसी मतलब इसी प्रोग्राम्स में ही आता है आपका नेक्स्ट आएगा ग्रीन रिवोल्यूशन, अरेंजमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक। ठीक है, और भी आप सजेशन देना चाहोगे तो इसमें और भी लिख सकते हो कि गवर्नमेंट को जो आपके स्मॉल फार्मर्स हैं इनको जो है इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करना चाहिए। इंटरेस्ट फ्री लोन जहां पर इन स्मॉल फार्मर से लोन का इंटरेस्ट ना लिया जाए, ये सारे हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप बता सकते हो आपका फैसिलिटी ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड, कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने आफ्टर फ्रीडम एडॉप्ट किए हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए। लास्ट क्वेश्चन इज मैप रिलेटेड क्वेश्चंस। ये हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। ठीक, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे 28 होगा। ये 28 नंबर क्वेश्चन होगा। सो द फॉलोइंग ऑन द गिवन मैप ऑफ इंडिया। यहां पर ये सिंबल्स, ये इंडिकेशन साइंस को हम साइन जो आपको ये दिए जाएंगे मैप में, इन्हें जो है इंडिया के मैप में आपको शो करना होगा। और साथ ही साथ आंसर सीट पे आपको उन प्लेसेस के नेम को भी मेंशन करना होगा। फर्स्ट, वन पोर्ट विद साइन एंड नेम। तो पोर्ट आपका फेमस पोर्ट, कई सारे पोर्ट हैं, तो फेमस पोर्ट में आप दिखाओगे जो कि आपका इंडिया का बिगेस्ट पोर्ट है मुंबई, तो इस सिंबल को आप यहां पर बनाओगे। ठीक है, और उसके बाद जो है यहां पर फिर आप जो है नीचे इसका नेम भी, ये सिंबल बना के कॉपी पे आप इसका नेम लिख दोगे, या इसके साथ साथ इसका नेम भी यहां पे आप लिख दोगे, लिख दीजिए तो ज्यादा बेटर होगा, मुंबई। सेकेंड, मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया विथ साइन एंड नेम। तो मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया में आपका आएगा इंडिया में जो मेन राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है, इंडिया का लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग एरिया, इट मींस वेस्ट बंगाल। तो आप वेस्ट बंगाल को यहां पर शो करोगे ये सिंबल बना के आप। ठीक है, और इसके प्लेस पर आप जो है नेम लिख देंगे वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, वन न्यूक्लियर पावर प्लांट विथ साइन एंड नेम। न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में मेनली 7 है। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी आपका फेमस है एक तारापुर महाराष्ट्र में, तो यहां पर, या फिर आप चेन्नई में, तमिलनाडु में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो यहां पर आप चेन्नई का ये नीचे हिस्सा, यहां पर आप एक इसका ये सिंबल बनाएंगे कुडनकुलम, ये आप ट्राइंगल शेप। ठीक है, जो आप ट्राइंगल शेप बना दोगे यहां पर, ये हो जाएगा आपका कुडनकुलम में, और यहां पर आप प्लेस लिखोगे। फिर अ डैम बिल्ट ऑन नर्मदा रिवर विथ साइन एंड नेम। तो मेनली नर्मदा रिवर का ओरिजिनेट प्लेस है आपका अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। ठीक है, और फिर उसके बाद ये आपकी एंट्री करती है गुजरात महाराष्ट्र से होते हुए, तो यहां पर आपकी नर्मदा रिवर है मेनली ये, और यहीं पर आप जो है ये साइन आप बना दोगे यहां पर। यहां पे आप ये साइन बना देंगे। ठीक, फिर उसके बाद है आपका वन ऑयल फील्ड विद साइन एंड नेम।
तो मेनली आपका इंडिया का ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है डिगबोई। डिगबोई इज इन असम। ठीक, तो ये असम में आपका ये है, और यहां पर आप जो है ये असम का एरिया होगा, और यहां पर आप ये सिंबल आप बना दोगे तो ये हो जाएगा, और साथ ही साथ इसका प्लेस का नेम भी लिख दोगे डिगबोई। वहां पर आप डिगबोई का नाम मेंशन करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे सरदार सरोवर डैम भी आप यहाँ पर मेंशन करोगे, जो नर्मदा रिवर पर जो है, यहाँ पर आप सरदार सरोवर डैम लिखेंगे। यहाँ पर मेजर पोर्ट का सिंबल आपने बनाया है, तो मेजर पोर्ट में आपका मुंबई है, बिगेस्ट मुंबई को यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है फिर आपका कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसको आपको शो करना है, ठीक। और फिर वन ऑयल फील्ड विथ यहां पर इट मींस असम एरिया में, तो यहां पर आप जो है डिगबोई को शो करेंगे, और वहां पर आप लिखोगे डिगबोई। और यदि आपने केवल यहां पर ये सिंबल सी, ये साइन को ही केवल ओनली मेंशन किया, और कॉपी पे प्लेस का नेम नहीं लिखा, तो भी आपको हाफ मार्क्स ही मिलेंगे, यानी कि 1 मार्क्स के प्लेस पर आपको केवल आधे आधे ही मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए यहां पर आप इन सारे सिंबल्स को शो करोगे, साथ ही साथ कॉपी पर इनके नेम भी लिखोगे, और यहां पर भी आपको नेम लिखने हैं इसके, ठीक। थैंक यू ऑल ऑफ यू।